Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will talk about how to shape your preparation in these 4 months so that you can easily pass this exam with an ease. I will talk about some 8 to 10 points which I have followed during my preparation days. Before I start, I would like to give a disclaimer that I have followed these steps during the last 4 months, and in short this strategy may or may not work for you. So if possible, frame your own strategy and don't trust blindly anyone, not even me. Okay, so guys, most probably this year your CAT exam will be conducted on 26th November. Last year it was on 27th November. So if we add from now to till 26th November, you have left with only 120 days. Okay, so it's become important to handle these 120 days with care and shape your preparation in a very strategic manner. Okay, so let's talk about our first point. Our first things that you all need to have is commitment. Okay, guys, this is one of the most important aspects that I have followed during my preparation days. Okay, like the way you commit to your partner, I would say for these 4 months, make your dream of studying in an IIM as your love. ठीक है, it should be important because अगर commitment नहीं रहेगा then you will be get diverted. ठीक है, and यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, this is an fact. So commitment is one of the main aspects to crack any exam. ठीक है, तो कहीं आई वुड से कि कहीं ना कहीं आप इसको लिख कर चिपका लो दीवार पे कि आई हैव टू be in an IIM. Okay, so first thing you need to have your commitment towards your goal. Okay, if second thing you need to have is focus. Okay, focus just like a divine bow of Arjun. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बस सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं, तो आई वुड से कि क्लोज योर सेल्फ इन अ रूम एट दिस मोमेंट एंड बस लग जाओ यार. ठीक है, लग जाओ प्रिपरेशन के लिए. At this moment, I remember one of the lines of Chetan Bhagat. He said in one of his novels कि if you wanna crack IIT, then close yourself in a room and throw the key. Of course, this is not the exact lines, but yeah, he said that only this only. But उतना भी एंटी सोशल होने की ज़रूरत नहीं है आपने. आई थिंक यू हैव ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ एंड व्हाट्स नॉट. So it's always better to focus on need what you need and want to achieve. Okay, so focus on your goal and commitment towards your goal. ठीक है, बस 4 महीने ही है, उसके बाद तो फिर IIM जाना ही है. ठीक है, तो फोकस. एंड थर्ड पॉइंट आई वुड से कंसिस्टेंसी. ओके, कंसिस्टेंसी. ठीक है, I think it is one of the key to get there. Complete your daily targets. Don't overburden yourself with stress. It might affect your efficiency. So if you want to be consistent for these 4 months, then start to enjoy your journey. Be proud of yourself, guys. Okay, be
प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके यार, तुम एक ऐसे एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो जहाँ पे ऑलमोस्ट वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, ठीक है, toughest exam of India. So the day you have decided to appear in CAT, बस उसी के बारे में सोचो और तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है वो खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई हलवा नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, हर कोई ये प्रेशर जो है ना झेल नहीं पाता। एंड यू विल सी, जब तक एग्ज़ाम आते रहेगा ना, 26 नवंबर को हम लोग का एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट जब एग्ज़ाम दे कर के आओगे और जब पूरा एनालिसिस हो जाएगा तो यू विल गेट टू नो कि ऑलमोस्ट 50 के स्टूडेंट्स हैव नॉट अपेयर्ड फॉर द कैट, डिस्पाइट ऑफ, मतलब कि डिस्पाइट ऑफ अप्लाइंग फॉर द एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स विल नॉट अपेयर फॉर द कैट एग्ज़ाम, ठीक है। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। Fourth point, I would say, which is one of the most important for everything, even in your life, it is for most important thing. That is, let me change my ink. Is time management. Time management. Okay, guys, listen. Ideal timing कोई भी फिक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई बंदा जो वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑफिस में वर्क फॉर 9 to 5 जॉब है, कोई बंदा है जो कि सिर्फ घर में रह के प्रिपरेशन फुल, मतलब कि प्रिपरेशन में नहीं लगा हुआ है, और जो थर्ड टाइप का बंदा है, वन जो कि वर्क कर रहा है, दूसरा जो कि फुल प्रिपरेशन कर रहा है, एंड थर्ड जो कि प्रिपरेशन तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर का, ठीक है, वो काम में बिजी है, तो वो मिक्स टाइप का है वो, ठीक है, मिक्सड है। तो एस्पायरेंट्स जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो बंदा वर्क कर रहा है, फुल प्रिपरेशन कर रहा है, और मिक्स मतलब कि वो काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, ठीक है। तो टू फिक्स अ आइडियल टाइम, टू फिक्स अ आइडियल टाइम, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी के लिए कि हाँ मुझे इतना घंटा ही पढ़ना है, एक वन डे में मान लो कि 7 घंटा पढ़ना है या 8 घंटा देना है, डेली पढ़ना है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आई वुड से कि सपोज करो कि अगर आपको कोई एक आइडियल टाइमिंग फिक्स करना है, तो कोई एक वीक ले लो, ठीक है। मान लो कि संडे, मंडे, मैं ऐसे ही करता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। तो सपोज करो कि इन 7 दिन में तुम संडे में 5 घंटा पढ़ते हो, मंडे को 6 घंटा पढ़ते हो, ऑन ट्यूसडे यू स्टडी फॉर अगेन 6 आवर, ऑन वेडनेसडे यू 7 आवर, ओके, थर्सडे 2 आवर्स, फ्राइडे 4 आवर्स, एंड सैटरडे अगेन 5 आवर्स, ठीक है। तो टू नो योर एग्जैक्ट आइडल टाइम, आई वुड से कि इस वीक में ऑब्जर्व करो कि आप किस दिन कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है। सपोज करो कि आप वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पढ़ते हो, कितना, 7 आवर, ठीक है, 7 आवर पढ़ते हो, और ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप मिनिमम पढ़ते हो, ठीक है। तो सपोज करो कि अब थर्सडे ने इसको 1 आवर लेते हैं टू मेक इट इवन, ओके। तो थर्सडे को आप 1 आवर पढ़ते हो जो कि आपका सबसे मिनिमम है, तो 1 आवर, एंड एक्स इसका मीन वैल्यू निकाल लो, मीन वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 2, 7 and 8 विच इज़ 4 आवर्स, ठीक है। तो आपका आइडियल जो टाइमिंग होगा, जो टाइम आप इस पर डिवोट करोगे फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए, वो तो क्या हो जाएगा आपका 4 आवर्स, ठीक है। तो ये एक आपका मीन वैल्यू आ जाता है जो कि आप एवरेज इसको लेके चलोगे 4 आवर्स, जो कि आपका प्रिपरेशन चलेगा। मैं ऐसे ही करता था, मैंने एक वीक ऑब्जर्व करा कि मैं संडे को अगर 5 आवर्स देता हूँ, मंडे को 6 आवर देता हूँ, ऐसे ही करके, तो मैंने क्या करा, जो किसी भी एक डे का हाईएस्ट आवर निकाला और फिर लोवेस्ट आवर निकाला, फिर ये दोनों का मैंने मीन वैल्यू निकाल करके एक आइडियल टाइमिंग निकाला मैंने, ठीक है।
तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो सपोज करो अगर इसको ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ, तो आपका प्रिपरेशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, तो हमेशा डिस्टॉर्टेड होगा। तो ऐसा कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई हैव ऑप्टेड टू मेक एन आइडियल टाइमिंग फॉर मी। ओके, सो इट डिपेंड्स। और जहाँ तक बात रही कि ट्रैक करने का, इफ़ यू वांट ट्रैक कि हाँ वो है कितना घंटा पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ऐप आता है बेसिकली। हम लोग के टाइम एक फॉरेस्ट ऐप था, अभी भी आता होगा, एंड दिस इज़ एन पेड ऐप। ओके, शायद 300 रुपये लगता है इसमें, तो मैंने ये परचेज नहीं करा था, उतना रईस ही नहीं है मेरे पास। तो फॉरेस्ट ऐप, और दूसरा मेरे को मिला था एक वाईपीटी ऐप। ओके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड्रॉइड में मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हो कितने घंटा देते हो या नहीं देते हो। सो बेटर बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एक ऐप सही था, मैंने इसी को यूज़ करा, ठीक है। चलिए, तो अगर नेक्स्ट की बात करें, फिर टॉक अबाउट नेक्स्ट, तो आवर फिफ्थ पॉइंट इज सेटिंग योर डेली टारगेट्स, ठीक है। तो द मोमेंट यू वेक अप, ठीक है, तो एक अपना जो डेली टारगेट्स है वो स्टिकी नोट्स पे लिख लिया करो, ठीक है। और हमेशा ऐसा मत करो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, ठीक है, वैसा कभी नहीं। ऑलवेज राइट इट ऑन ए पेपर, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, ठीक है। पेपर में रख लो या इसको लिख लो, और सामने जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर एक स्टिक कर लो, चिपका लो इसको, ठीक है। ऑल एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव इट, ठीक है। ट्राई करो कि मैं जो आज टारगेट जो बना रहा हूँ वो अचीव कर लूँ। लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जो है ना 70 to 80% आपका टारगेट ही अचीव हो पाता है। 70 to 80% का मतलब ये है कि आप कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो, तभी ये 70 to 80%। कि ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई हो नहीं पाते, क्योंकि कभी कोई और बुला लेगा, कभी कुछ काम पड़ जाएगा, कभी बीच में नेटफ्लिक्स भी चला लोगे, यूट्यूब भी चला लोगे, तो उसमें पूरा अच्छा से यूज़ नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपका सपोज करो अगर 70 to 80% टारगेट ही अचीव होता है, ठीक है। तो अगर इससे भी अगर आपका कम हो रहा है तो यू नीड टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, ठीक है। सब और इससे भी अगर कम आपका टारगेट अभी अचीव हो रहा है, तो चूँकि आपका पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो यू नीड टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, ओके, एंड हार्ड वर्क, एंड डू हार्ड वर्क। तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 6, आई वुड से ऑलवेज कीप अ पाइल अप डे, ठीक है, ऑलवेज कीप अ पाइल अप डे और बैकलॉग डे, ठीक है। अब ये दिन आपको क्यों रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका जो टारगेट है यूजुअली 70 to 80% आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। सो ये जो बच गया लेफ्ट ओवर जो टारगेट है आपका 20%, आपका जो टारगेट जो बच गया, तो पूरे वीक में आपका ये पाइल अप होते जाएगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपका जो टारगेट है वो बच जाएगा, ठीक है, लेफ्ट ओवर, ठीक है। सो टू कंप्लीट योर पाइल्ड अप टारगेट्स you should have a backlog डे, ठीक है। किसी भी दिन को बैकलॉग डे के बना सकते हो, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, कोई भी दिन बना लो, और उस दिन पे आपका जितना भी जो टारगेट जो बचा है पूरे वीक का, उसको आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। मैं ऐसे ही करता था, मैंने हमेशा संडे को अपना बैकलॉग डे मनाया, मैंने रखा था, और मैं जितना भी मेरा टारगेट बचता था तो मैं उसी को कंप्लीट करता था उसमें, ठीक है। तो ऑलवेज कीप अ पाली अप डे। एंड इसके साथ मैं बोलूँगा कि नेवर डू
ग्रुप स्टडी। अगर अभी तक आप कर रहे हो तो वो छोड़ दो, एंड सो नेवर डू ग्रुप स्टडी। अगर करना ही है तो मॉक टेस्ट जो दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसको आप ग्रुप में दे सकते हो, ग्रुप में, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई जो कर रहे हो वो हमेशा अकेले ही करना, ठीक है। ग्रुप स्टडी मत करना, अभी कर रहे हो तो छोड़ दो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आप ग्रुप में दो, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। सो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ताकि आपका जो कंपटीशन है वो आप एक कंपटीशन वाले माहौल में बैठ सकते हो, जिससे आपको एक वाइब मिलता है अच्छा वाला कि हाँ मैं एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है। सो this comes to our number 7. So number 7 I would say give mock test। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो कितने लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है वैसे वैसे अपना मॉक टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कभी नहीं करता था, बिकॉज मेरे को लगता था कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था। इसलिए जो मॉक टेस्ट है एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दिया करो पर वीक, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव इनफ करेज एंड इफ यू डोंट इजीली गेट disheartened, तो अगर आप सख्त लौंडे टाइप हो तो देन यू कैन गिव फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज ऑलवेज प्रीफर टू गिव सेक्शनल मॉक्स। मैंने पहले भी सेशन में कहा है कि सेक्शनल मॉक्स ही दिया करो, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक्स में इसलिए दिया था बिकॉज नंबर कम भी आते थे ना तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता था, और ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज प्रीफर टू गिव सेक्शनल मॉक्स। फुल लेंथ टेस्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया पर ज़्यादा नहीं दे पाया, 2 से 3 मैंने टेस्ट दिया था और फिर उसके बाद डीमोटिवेट होने लग गया तो मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट, और एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट तो नहीं दीजिए ना, ठीक है, ज़रूरी भी है ताकि आपको रियलिटी चेक मिलते रहे कहीं ना कहीं। एंड 8 आई वुड से एनालिसिस ऑफ मॉक्स, है ना, एनालिसिस ऑफ मॉक्स, ठीक है। Genuinely speaking, when I was preparing, I have tried to analyze 1 or 2 mocks, but it consumes so much of time. So I plan to desert that. I know everyone say to analyze mocks. Well, it's okay. करने में कोई हर्ज भी नहीं है. You can do that. It's your choice. But in my perspective, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है तो उसका जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको शुरू से नहीं पता है, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने को, एंड मोस्टली मैंने देखा है कि क्वेश्चन वही गलत रॉन्ग होते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो या आपने वो ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ मॉक्स में टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो यू कैन एनालाइज योर मॉक्स, बट आई डेजर्टेड दैट आइडिया बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मेरे पास बस 4 महीने था, साथ ही साथ मैं सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ठीक है। अगर आपके पास वो लग्जरी है कि आप एनालिसिस कर सकते हो तो आप कर लेना, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे ये लगता है कि जहाँ तक एनालिसिस की बात है, अगर मॉक्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, तो वही क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं जो कि आपका उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं है कि आप उस क्वेश्चन के पीछे भागे। अब जिन्होंने जिस जो आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके ऊपर वर्क करने का टाइम है, कोई नए क्वेश्चन के पीछे भागने का टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो यू कैन, इट्स योर चॉइस, एनालिसिस ऑफ मॉक्स। नंबर 9 आई वुड से रिवीजन, ओके। रिवीजन, guys, I would say this is one of the most important thing for any of the aspirants who are preparing for any of the exams, be it CAT, be it UPSC, be it SBI PO, any competitive exams.
So in last session, I have also told you about to frame some prototypes of different questions from LRDI quant, ठीक है, and practice and revise as much as you can. I would also suggest that instead of running after new questions that you usually get in WhatsApp and Telegram groups, you should revise your own notes. Revise your own notes. आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों ने एक क्वांट का फॉर्मूला बुक बनाया ही होगा, ठीक है। उसमें सारे फार्मूला, एक तो मॉड का फार्मूला या मेंसुरेशन का फार्मूला उसमें रहना चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जितने टाइम आप रिवीजन करोगे ना, हर एक टाइम आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बी इट कैट, बी इट यूपीएससी, आपको ये ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा नो लॉन्ग रन, ठीक है। तो ऑलवेज रिवाइज योर ओन नोट्स। और नए क्वेश्चन के पीछे जो व्हाट्सएप पे आपका पास आता है या टेलीग्राम पे आता है या किसी भी और ग्रुप पे जो आता है, तो बंदे जो है उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, ईगो पे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, अब वो टाइम नहीं बचा है, ठीक है। जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी के ऊपर रिवाइज करो और उसी पे ऊपर टाइम अपना डिवोट करना, ठीक है। तो रिविजन इज द की। एंड लास्ट आई वुड से विच चीज़ आई ऑलवेज हैव, ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं बचा, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए ऑलवेज टेक ब्रेक्स, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है इन माई परस्पेक्टिव, ब्रेक्स जो है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक वॉलेंट्री या दूसरा इनवॉलेंट्री ब्रेक्स, ठीक है। एंड आई थिंक वॉलेंट्री ब्रेक्स इज प्रोडक्टिव एंड इनवॉलेंट्री, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग प्रोडक्टिव, बिकॉज इनवॉलेंट्री ब्रेक्स यू हैव आइडिया कि भाई मुझे, मान लो कि अगर ये संडे है, ठीक है, संडे को मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि हाँ भाई कल संडे है, मुझे मेरे को ब्रेक लेना है या कहीं जाना है, तो आप सैटरडे को ना काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद जब मंडे आएगा, तो मंडे को भी आप सोचोगे कि यार संडे को मेरा काफ़ी ज़्यादा पाइल अप टारगेट हो गया है, तो मैं मंडे को भी अच्छा खासा पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वॉलंटरी जो ब्रेक है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो ऑलवेज प्रीफर टू हैव वॉलंटरी ब्रेक्स, ठीक है। एंड इन वॉलंटरी ब्रेक्स आई मीन टू से कि सपोज करो कि कोई अनफोर्सिंग सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कहीं जाना पड़ गया तेरे को, या कुछ काम आ गया, कॉलेज का काम आ गया, या कोई वर्क जो बॉस है जो ज़्यादा दे दिया कोई काम करने के लिए, तो उसमें इनवॉलंटरी ब्रेक्स मिल जाता है, जो कि आप अनफोर्सिन सिचुएशन है, आपको करना ही पड़ेगा। उसमें क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और आपको फिर जब आप दोबारा करेज गैदर अप करते हो ना, जब आप फिर से दोबारा पढ़ने को बैठते हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मन नहीं लगता है, मन उचट जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी ब्रेक जो है ना, थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इससे जो रिदम है वो ब्रेक हो जाता है, ओके। एंड दिस कैन बी फ्यूटाइल फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। इन दोनों ब्रेक को मिलाकर करके मैं ये बोलूँगा कि सपोज करो कि जैसे कि मैंने बोला है कि डेली टारगेट सेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेली टारगेट सेट करने के लिए है तो आप बस उसको पूरा करने में लगे रह जाओ, बीच बीच में वो भी मतलब कि ब्रेक लेते रहना, सो डैट यू कैन फ्री योर मेंटल फैटिग, ठीक है। तो टू फ्री योर मेंटल फैटिग एवरी डे कुछ ना कुछ 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लिया करना, ठीक है। चलो, so guys, I have told you 10 important things that you will need to have in these 4 months to crack CAT exam, okay. Initially I have already given disclaimer,
सो आई वुड अगेन से कि किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इवन नॉट मी। सो अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छा पॉइंट लगता है तो यू कैन अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, I would like to quote one of the most famous quote by APJ Abdul Kalam. He said that life will never provide guarantees and guarantees. It can only provide possibilities and opportunities to convert them into success. He said life will never provide guarantees और स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो माइंड मत करना यार। इट कैन only provide possibilities and opportunities to convert them into success. Okay, so guys, you have full possibilities, and along with that you have opportunities to convert an IM or reality. Okay, you have seen your dream to be in one of the IMs, so it's high time to work for it. ठीक है, बस जान लगा दो, बस 4 महीने के बाद है, ठीक है। 4 महीने के बाद सीधे IM एंट्री। ओके, so guys, that's all for today. I hope this might help you in your preparation, and I wish you all the very best, all the very best for the same. You can show your support by subscribing to my channel and try to share this as much as you can, ठीक है। सब्सक्राइब and share as much as you can. Okay, so guys, thank you for listening to me. See you in the next video. Till then, thank you and take care.